आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। फाइनेंस मिनिस्टर के हरीश राव ने आज रियासती असम्बली में साल 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया, जिसमें 2,30,08,25 करोड़ रुपए के अखराजात की तजवीज़ पेश की गई है। एक अंदाजा के मुताबिक 6,743 करोड़ सरप्लस है, जबकि 45,509 करोड़ का खसारा है। अरकान असम्बली के लिए 5 करोड़ रुपए फीकस तरक्याती फ़ंड मुख्तस किया गया है और कौंसिल के अरकान के लिए भी 5 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है और इस तरह से जुमरा 800 करोड़ रुपए इस मद के लिए मुख्तस किए गए हैं। अक़लियती बहबूद के लिए 1,606 करोड़ रुपए, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए 2,750 करोड़ रुपए, किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 5,225 करोड़ रुपए, सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 610 करोड़ रुपए, महकमे एंडोमेंट के लिए 720 करोड़ रुपए, महकमे ज़राअत के लिए 2,500 करोड़ रुपए, आसरा पेंशन के लिए 11,728 करोड़, तेलंगाना स्कूल एजुकेशन के लिए 11,035 करोड़, डबल बेडरूम के लिए 11,735 करोड़ रुपए की डबल बेडरूम की तामीर के लिए 11,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में सबसे ज़्यादा 29,000 करोड़ रुपए महकमे पंचायत राज के लिए और मूसा नदी की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वरंगल कारपोरेशन के लिए 2,500 करोड़ और खम्मम कारपोरेशन के लिए 150 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। వైఖరికి ఇంతకు మించిన తార్కాణం ఇంకేముంటుంది. ఎరువులు విత్తనాలను సకాలంలో అందిస్తుంది. చెరువులు బాగు చేసి భూగర్భ జలాలు పెరిగేలా చేసింది. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం సాగిస్తోంది. రికార్డు సమయంలో కాళేశ్వరం భారీ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును చాలా వరకు పూర్తి చేసి అందించగలిగిన మేరకు గోదావరి నీళ్లతో బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేస్తుంది. భారతదేశం సంవత్సరానికి 70,000 కోట్ల రూపాయల విలువగల పామాయిల్ను దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దీనికి బదులు దేశీయ ఉత్పత్తి చేస్తే బోలెడు విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆదా అవుతుంది. పామాయిల్కు అంతర్జాతీయ డిమాండ్ ఉండడమే కాకుండా ఈ పంట సాగు వల్ల పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రైతుకు ఆయిల్ పామ్ సాగు చేసేందుకు కావలసిన అన్ని రకాల సహకారాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ఆయిల్ పామ్ సాగు వల్ల తెలంగాణ రైతులు మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆయిల్ పామ్ వేసిన తర్వాత 4 ఏళ్ల నుంచి పంట దిగుబడి ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కసారి వేస్తే 30 సంవత్సరాల దాకా పంట దిగుబడి వస్తూనే ఉంటుంది. దీని ద్వారా రైతుకు నిరంతర ఆదాయం వస్తుంది. ప్రభుత్వం ఆయిల్ పామ్ రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఎకరానికి 30,000 రూపాయలు సబ్సిడీగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇది పోగా మిగిలిన పెట్టుబడి భారం కూడా రైతుపై పడకుండా బ్యాంకుల ద్వారా ఇప్పించేందుకు కార్యాచరణను రూపొందించింది. రైతులు బ్యాంకుల వద్ద నుంచి తీసుకునే రుణాన్ని వెంటనే చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా 4 ఏళ్ల పాటు మారటోరియం విధించే విధంగా బ్యాంకులను ఒప్పించింది. రాష్ట్రంలో 8.14 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ సాగుకు కావలసిన ప్రణాళికలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. రైతులు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని పరస్పరం చర్చించుకోవడానికి వీలుగా రైతు వేదికలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఈ రకమైన ప్రయత్నం దేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు. 572 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో 2,601 రైతు వేదికలను ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నిర్మించింది. हुकूमत तेलंगाना ने माली साल 2021-22 के लिए बजट में अक़लियतों के लिए 1,606 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने असम्बली में 2,30,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। हरीश राव ने कहा कि माली साल 2020-21 में अक़लियतों के लिए 1,518 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर के क़याम के लिए कोकापेट हैदराबाद में 10 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत ने समाज के मुख्तलिफ तबकात की गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए बजट में 2,750 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने बजट तकरीर में कहा कि अब तक कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 8,04,521 लड़कियों की शादी के लिए
6,480 करोड़ रुपए की इमदाद की तकसीम की गई है। పేద తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేయడానికి తగిన ఆర్థిక స్తోమత లేక సతమతమవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ముఖ్యమంత్రి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దీవెనలు అందుతున్నాయి. ఆర్థిక సహాయం అందుకున్న ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో కనిపించే సంతృప్తే మా పరిపాలనకు దక్కిన గొప్ప సార్థకతగా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా 8,04,521 మందికి 6,480 కోట్ల రూపాయల లబ్ధిని ప్రభుత్వం చేకూర్చింది. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకానికి ఈ బడ్జెట్లో 2,750 కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. हुकूमत की जानिब से रियासत में शी टॉयलेट सिर्फ तामीर करवाए गए हैं। माली साल 2021-22 के बजट में तमाम पुलिस स्टेशनों और यूनिवर्सिटी में शी टॉयलेट्स की तामीर के लिए फंड्स की तजवीज़ पेश की गई है। खवातीन पुलिस ओहदेदारान, ज़ायरीन और खवातीन मुजरिमीन की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पुलिस स्टेशनों में शी टॉयलेट्स की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए और खवातीन प्रोफेसर्स और तालिबात के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में शी टॉयलेट की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि खुद मुख्तार खवातीन तंजीमों के लिए सूद कर्जे 3,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जुमला खवातीन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए 1,700 करोड़ रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। रियासत में दलित तबके की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर फिराक दिली का मुजाहरा किया है। वजीर खजाना हरीश राव ने कानून साज असम्बली के बजट इजलास पर ऐलान किया कि वजीर आला ने 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम तश्कील दी है। वजीर हरीश राव ने कहा कि इस स्कीम से रियासत में शेड्यूल जात के लोगों को बड़े पैमाने पर फवायद हासिल होंगे। एससी के खुसूसी तरक्याती फंड के लिए 21,000 करोड़ से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है। భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అన్నట్లు ధ్యేయం పట్ల నిలువెల్ల అంకిత భావం కలిగిన వ్యక్తులు సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తారు. ఈ మాటను నిజం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజల సర్వతోముఖాభివృద్ధి కోసం నూతన పథకాన్ని రూపొందించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో 1,000 కోట్ల నిధులతో సీఎం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాంను ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ నూతన పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రజలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనాలను కలిగించబోతున్నది. रियासत तेलंगाना का बजट सनतों की तरक्की के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने वाला दोस्त बजट है। हुकूमत ने पहली मरतबे इंडस्ट्रीज़ के लिए फिराक दिलाना मनसूबा बनाया है। इसके अलावा अगर बरखी की फराहमी में रियायतें फराहम करती है तो ये रियासत के मफाद में बेहतर होगा। INN से बात करते हुए रियासत तेलंगाना की बाख्तियार तंजीम फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर रमाकांत इनानी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर फाइनेंस को FTCCI की जानिब से मुबारकबाद दी है। नहीं सब जो 4 से 5 साल का बैकलॉग है वो एट ए टाइम, और क्या गवर्नमेंट जो 2,500 करोड़ रुपए जो एलोकेट करी है, क्या आपको उम्मीद है कि पूरा जो गवर्नमेंट रिलीज करेगी? हाँ, जैसा आपने बताया कि 2.3 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है उसमें 45,000 करोड़ का करीब घाटा दिखा रहे हैं। वो गवर्नमेंट को कहीं से बोरो या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं से ग्रांट लाना पड़ेगा। वो पूरा आने के बाद में फिर उस सोर्स से एक बार गवर्नमेंट बजट में दे देती है तो 90% उसको पालन करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बराबर अलॉकेट होगा और इंडस्ट्रीज को जो पेंडिंग इंसेंटिव है जरूर मिलेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। इन्होंने सब जैसा आपने कहा है कि और बजट में 45,000 लॉसेस बताए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसको रिकवर करना है। पहले रिकवर करने के बाद फिर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हुकूमत को और लोन लेना पड़ेगा। क्या जब गवर्नमेंट और लोन लेते जाएगी स्टेट लिए, तो ऐसी उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होना है, क्या वो ऐसी हालत में पॉसिबल है?
नहीं, कोविड के वजह से इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो बजट आई है वो भी इसी प्रकार से ही है। उसमें भी डेफिसिट फाइनेंसिंग रखी गई है, जो फॉरेन में वगैरह में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स अवेलेबल है, या गवर्नमेंट अपनी ज़मीन वगैरह एसेट बेच के वो अमाउंट को खड़ा करेंगे। उसी प्रकार उसी फार्मूला को फॉलो करते हुए अपनी राज्य की हुकूमत भी इसी टाइप की फाइनेंसिंग में जाके और वो अल्टरनेट सोर्सेस से फंड्स लाके ये पूरा बजट का जो एलोकेशन है कंप्लीट करेंगे। इन्होंने सब तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आज असेंबली में पेश करदा 2,30,000 करोड़ के बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए बनाया गया है। इस बजट में रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं है। आज बजट के बाद INN से बात करते हुए कांग्रेस मकन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्ट विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहद किया है कि बजट में हर साल 50,000 करोड़ का इजाफा करते हुए हजारों करोड़ रुपए रियासत के नाम पर कर्ज हासिल करें और इन कर्जों से रिश्वत हासिल करें। भट्टी ने कहा कि अनकरीब रियासत का खर्च 5 लाख करोड़ से तजावुज कर जाएगा। लोगों को खुशी करने के लिए ये अनाउंस करे सो बजट है। 2,30,825 करोड़ का बजट में एक्चुअल रियलाइजेशन इतना नहीं रहता इसका। और ये बजट में मैं पिछले साल भी बताया था, ये चीफ मिनिस्टर साहब हर साल में 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ लोन्स लाने के लिए कोशिश कर रहा। आज तक 3,50,000 करोड़ रुपया लोन्स है स्टेट के ऊपर। आने वाले सालों में हर साल 50,000 करोड़ लोन लाए तो और एक 1,50,000 करोड़ बनेगा, पूरा मिला के 5 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर ये स्टेट के ऊपर 5 लाख करोड़ लोन्स लाए तो बहुत मुसीबत में पड़ेगा ये स्टेट, क्योंकि पूरा 70 इयर्स में अपना लोन्स पूरा 70,000 करोड़ से थे। ये गवर्नमेंट एक साल में 50,000 करोड़ रहा है, बहुत गलत है। इतना फिजिकल डेफिसिट बजट कहीं मैं अभी तक सुना भी नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ इवन इन द कंबाइंड स्टेट आल्सो इन द एंटायर 70-75 इयर्स। बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा कि कानून साज असेंबली में पेश करदा बजट सिर्फ पेपर की हद तक महदूद रहेगा। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने हुकूमत से सवाल किया कि माजी में मूसा नदी के लिए मुख्तस फंड कहां गए। राजा सिंह ने स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए फंड्स मुख्तस न करने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा कि LB स्टेडियम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह हो गया है और इसकी तज़ीन व आराइश की जरूरत है। ఒక మోడల్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ చేస్తా అని ఉస్మానియాలో నిలబడి ఆయన మాటలు మాట్లాడిండు, కానీ ఉస్మానియా గురించి ఎంత డబ్బులు ఖర్చు చేస్తారు దాంట్లో ఏమీ కూడా రాయలేదు. అదేవిధంగా బస్తీ దవాఖానాలు దాదాపు 200 పైననే మేము బస్తీ దవాఖానాలు పెట్టినాం. అసలు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీరు జస్ట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిటీల మీదే, కానీ దాంట్లో డాక్టర్ కానీ నర్సులు కానీ టాబ్లెట్ కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు ఇస్తున్నారు? కేంద్రం నుంచి డబ్బులు ఇస్తలేరా? ఎన్ని ఇస్తున్నారు అది కూడా రాస్తే చాలా బాగుండేది. అదేవిధంగా మూసీ డెవలప్మెంట్ గురించి 200 కోట్ల రూపాయలు మేము పెట్టినామని అంటున్నారు. గతంలో కూడా కోట్ల రూపాయలు మీరు శాంక్షన్ చేశారు మూసీకి మంచిగా మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తామని. అదే ప్రొజెక్టర్ పెట్టి అసెంబ్లీలో మూసీ ఈ విధంగా ఉంది, మేము ఈ విధంగా చేయాలని, ఒక మోడల్గా చేయాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గతంలో ఉన్న మూసీ ఇప్పుడు ఉండకూడదు అని ఒక ప్రొజెక్టర్ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్ద भारतीय जनता पार्टी ने वजीर फाइनेंस टी हरीश राव की जानिब से 2,30,000 करोड़ के पेश करदा 2021 और 22 के बजट को झूठ का पुलिंदा और गैर जरूरी तौर पर अपनी रियासत को ऊंचा दिखाने की घटिया हरकत करार दिया। 2020 कोरोना से मुतासिर रहा, जिसमें मुल्क की मईशत निचली सतह पर पहुंच गई। इसके बावजूद इतना बड़ा बजट बनाना सरमायाकारों को बेवकूफ़ बनाते हुए सरमायाकारी को दावत देना है।
रियासत तेलंगाना का मौकूफ 3 लाख करोड़ से ज़ायद का खर्चदार है और मज़ीद 1 लाख करोड़ खर्च हासिल करने के लिए बजट बनाया गया है। आइंदा दिनों में रियासत का हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख का कर्जदार बनकर पैदा होगा। बीजेपी बजट की मुखालिफत करेगी। जो है 2,30,000 करोड़ का बजट हरियाणा सामने पेश किया। ये क्या स्टेट का डेवलपमेंट बजट है या नहीं पार्टी का हाइप किया हुआ बजट है? ये नहीं, हम ये पूछना चाह रहा, पूरा गए सौ मार्च से लेकर ये मार्च तक पूरा कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन वाज प्रिवेलिंग, पूरा रेवेन्यूज पूरा खत्म हो गए। मैं नहीं बोल रहा ये बात, कल असेंबली में गवर्नर जी का प्रसंग का धन्यवाद का तीर्मान में मुख्यमंत्री जी बोला एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, कहाँ से देना हम लोग निरुद्योग भृति बोल के सीएम साहब ने फ्लोर में बोल दिया। फिर आज कल से लेकर आज तक आए तक कहाँ से आ गए 2,30 करोड़ 825 करोड़ का बजट कहाँ से आ गए? कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में रेवेन्यू किधर से आ रहा है? गवर्नमेंट को कहाँ से लेके आ रहे हैं पैसे? आप क्या डेब्ट ले रहा, बैंकों से लोन ले रहा? हम वही बोल रहा है, हर साल में 50,000 1 लाख करोड़ रुपए डेब्ट लेके आप पैसे किधर बांट रहा? उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1 रुपए नहीं दिया, उस्मानिया दवाखाने को 1 रुपए नहीं दिया। हैदराबाद में परसों बारिश गिरे तो आप लोग देखिए रोड के ऊपर बस कार चलने की जगह पूरा बोट चलना पड़ा। हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाला है? HMDA को कैसा डेवलप कर रहा, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये सब बगैर पैसे आप जो भी बोलो, आप सुनने के लिए अच्छे बात बोले तो वैसे ही दिख रहा है। इनकम कहाँ से आ रहा, रुपए पैसे कहाँ से आ रहा स्टेट को? जब मालूम हो गए तो पैसा कैसा खर्च करना मालूम होता। आने का रास्ता ही नहीं बता रहे, आप खर्च करने का रास्ता बता रहे, तो आने का पैसा नहीं है तो कल के दिन खर्च करने का जगह कैसे मिलता आपको? ये पूरा एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। खाली सुनने के लिए अच्छा रहना बोल के एक अच्छा बजट गणांक अच्छा प्रकटित किया, मगर होने वाला दिन में आने वाला दिन में इसमें कुछ शामिल होता बोल के तो मेरे के नहीं है। रघुनंदन साहब, प्रेजेंटली मोर देन 3 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में खर्चा है। अब इसके बारे में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बजट के अंदर बताए गए और गवर्नर की स्पीच में, क्या उसके लिए और खर्चे लेंगे ये लोग? तो लेना ही पड़ता ना, जब उसके जेब में आपका जेब में पैसे नहीं है तो कहाँ से लाना? इसके दोस्त के पास से बारो करना, बैंक से लोन लेना, वही करना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट। मैं वही पूछ रहा हूँ, गए 100 साल का बजट से मैं ये सोचा था कम होता है ये साल का बजट, क्यों बोले तो रेवेन्यू कम है ना। जब रेवेन्यू नहीं है तो आप क्या करेगा? कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में आपके पास रेवेन्यू कैसा बढ़ रहा? आप कहाँ से लेके आए थे पैसे? फिर एक बार बैंक को जाना, फिर एक बार डेब्ट लेना। हुकूमत तेलंगाना ने 2021 और 22 का जो बजट पेश किया है वो रियासत की तरक्की के लिए हौसला अफजा है और सनतों के लिए 2,500 करोड़ की तरगीबात की गुंजाइश रखी गई है। वो अगर 100% जारी की जाए तो सनतें कर्ज से बाहर निकलने में मुमकिन हद तक कोशिश कर सकती हैं। इसके बाद INN चैनल से बात करते हुए V अनिल रेड्डी, साबिक सदर फेडरेशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने ये बात बताई। बजट एलोकेशन किए थे पर उसमें से जहाँ तक हमारे हिसाब से 500 से 600 करोड़ करीब रिलीज़ हुआ, यानी बहुत कम रिलीज़ हुआ पैंडेमिक की वजह से समझो, और बजट रेवेन्यू जनरेशन नहीं था। इसके लिए अपन ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर पाए, उनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैंडेमिक के हिसाब से पेमेंट नहीं आया उनके। पर इस बार जो पिछले साल में जो शॉर्टफॉल था और पिछले साल में जो नई पेमेंट नहीं हुआ उसको भी जोड़ के अभी इस बार 2,500 करोड़ दिया, बहुत अच्छी रकम है ये। और हमारा उम्मीद है कि ये पूरा पेमेंट अगले साल जब बजट में देखे जाएंगे तो इसका टोटल इस्तेमाल कर लेंगे बोल के हमारा उम्मीद है। और पावर सेक्टर के लिए जो 11,000 करोड़ का जो पेमेंट दिया गया मेरे हिसाब से थोड़ा कम है वो, क्योंकि ये 11 ग्रेजुएट जुमरे के तहत मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात की वोटों की गिनती दोनों हल्का जात में जारी है। अब तक की गई वोटों की गिनती के दूसरे राउंड में दोनों हल्का जात में TRS उम्मीदवार सबकत हासिल किए हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर में TRS उम्मीदवार वाणी देवी BJP उम्मीदवार रामचंद्र राव से 2,613 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार चिन्ना रेड्डी 5वें नंबर पर हैं। नलगुंडा और वरंगल खम्मम हल्के से TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी आज़ाद उम्मीदवार 3,000 से वोटों से सबकत हासिल किए हुए हैं, जबकि प्रोफेसर कोदंड राम तीसरे नंबर पर हैं।
भैंसा में 4 साल की लड़की पर हुई अस्मत रेजी के हमले के वाक़यात पर आज बीजेपी की कौमी नायब सदर डी.के. अरुणा की क़ियादत में धरना दिया गया। डी.के. अरुणा ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, ख़वातीन और न ही मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भैंसा में 4 साल लड़की के साथ पेश आए वाक़े पर हुकूमत आखिर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए है? चीफ मिनिस्टर इस ताल्लुक़ से कोई इक़दाम न करना अफसोसनाक है। लड़की के वालिदैन मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू होने पर पुलिस का रवैया भी गैर इंसानी रहा। ऐसे वाक़यात पर चीफ मिनिस्टर संजीदगी के साथ इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तहक़ीक़ात करवाई जाएँ, लड़की के ख़ानदान को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। डी.के. अरुणा आंखों पर स्याह पट्टी को बांधकर मीडिया से बातचीत कर रही थी। శాంతి భద్రతలు మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా ఈ రోజు మేము కళ్ళ కట్టుకొని గంటలు కట్టుకొని చేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, అయ్యా ఆ కుటుంబం భైసాలో 4 సంవత్సరాల చిన్నారి పైన ఆ అఘాయిత్యం జరిగిందంటే ఆ అఘాయిత్యం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మనందరి బిడ్డల పైన జరిగినటువంటి అత్యాచారంగా మనం భావించాలి. ఒక 4 సంవత్సరాల చిన్నారిని కూడా ఒక అమ్మాయిని రోడ్ల మీద అర్ధరాత్రి टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज मरकजी हुकूमत से कहा कि वह तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों को पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल करें। लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान उन्होंने अक़लियती स्कीमों से मुताल्लिक़ पर बात की। उन्होंने कहा कि रियासत में गरीब तबक़े को कई परेशानियों का सामना है और मरकज़ को गरीबों पर तवज्जो देनी चाहिए। MP नागेश्वर राव ने कहा कि गरीब बच्चियों की शादी करना उनके वालिदैन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह बेटी बचाओ शादी कराओ स्कीम को मरकज़ में मुतारिफ कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़े की फलाह व बहबूद के लिए इस स्कीम को पूरे मुल्क में राइज किया जाना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमों से गरीब बच्चियों की शादी को यकीनी बना रही है। तेलंगाना हुकूमत गरीब शादीशुदा लड़कियों को बतौर तोहफ़ा 16,000 रुपये दे रही है। रुकन असम्बली नामा नागेश्वर राव ने मुतालबा किया कि इस तरह के प्रोग्रामों को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। उन्होंने निशानदेही की कि अक़लियतों में तालीम याफ्ता अफराद की फ़ीसद कम है और इनमें ख़वानदगी बढ़ाने के लिए किसी भी स्कीम को नाफिज किया जाना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम रुकन पार्लियामेंट नामा की तजावीज़ को कबूल कर रहे हैं। सर, ऑनरेबल मंत्री ने एक तो काफ़ी डिटेल का साथ जो है ना सर पूरा प्रोग्राम्स का डिटेल दे दिया और बोलने का टाइम भी जो है ना सब जो भी किया है वो सब काफ़ी अच्छी तरह से बोले। उसके लिए तो मंत्री साहब को धन्यवाद। और उसका साथ साथ जो है ना सर हमारा जो गरीब का घर में आज के दिन में क्या हो रहा है, गरीब का बेटी का जब वो बड़ा होता है तो उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको थोड़ा आपका ये हाउस का दृष्टि को लेके आना चाहता है साहब। इसमें हमारा रिक्वेस्ट है साहब, एक तो जो है ना इतना प्रोग्राम करने के बाद जो है आज के दिन में शादी करने में दिक्कत हो रहा है गरीब का जो है ना बेटी को। अभी जिस तरह से जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम रखा है उसी तरह से बेटी को बचाओ शादी करवाओ ये प्रोग्राम एक रखने के लिए अच्छा रहेगा साहब। हमारा जो तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक ये प्रोग्राम से 1,16,1,600 रुपया हर एक घर को जो है ना हम लोग देता है साहब। 1,16,1,600 रुपया जब शादी होता है शादी का दिन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का बारे में देता है। हमारा रिक्वेस्ट है साहब उसको थोड़ा ये प्रोग्राम का बारे में देके पूरा देश में इसको लागू करे। उसी का साथ साथ जो है ना साहब थोड़ा माइनॉरिटीज का जो है ना सर अभी भी इलिटरेट का परसेंटेज नहीं उसमें जो है ना एजुकेशन में जो है ना सर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए भी क्या करना है उसका देखिए साहब। जरूर जो है ना सर ये प्रोग्राम पार्टी ये सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज ये गरीब का घर में शादी के लिए सब लोग मदद करना। सीनियर IPS ऑफिसर और साबिक DG तेलंगाना विनय कुमार सिंह ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कभी भी पुलिस की नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी क़ायद से ज़्यादा वो तेलंगाना के लिए अपना खून पसीना बहा चुके हैं। हुकूमत काबिल अहदेदारों को बिठा कर रख रही है और परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत बंगारू तेलंगाना नहीं कंगारू तेलंगाना बना रही है। लाइवलीहुड के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैंने व्यवस्था में परिवर्तन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। लेकिन मैंने देखा कि गवर्नमेंट
अच्छे कार्यों के लिए रिवार्ड देने के बदले आजकल पनिशमेंट देने लगी है। खासकर तेलंगाना की सरकार ने हमारे अच्छे कामों के लिए मेरा प्रमोशन रोका, मेरे सभी बेनिफिट्स रोक दिए और ऊपर से चार्ज मेमो भी दे दिए। आज तक इतने सीनियर अफसर को कभी भी चार्ज मेमो नहीं दिया गया, लेकिन बिना किसी ग्राउंड्स के इस सरकार ने हमारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रोकने के लिए चार्ज मेमो दिए और सभी बेनिफिट्स भी रोक दिए। तेलंगाना की सरकार और तेलंगाना राष्ट्र यहाँ की जनता के लिए एक स्वर्णिम तेलंगाना के लिए बनी थी, लेकिन यह स्वर्णिम तेलंगाना का स्वप्न अधूरा। दारुल हुकूमत अमरावती की मुख्तस अराजियात के मसले पर सीआईडी की जानिब से दर्ज करदा एफआईआर पर सवाल उठाते हुए आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने हाईकोर्ट से रुजू हुए जिन्होंने कल अदम करने की एक अर्जी रियासत हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए सीआईडी की एफआईआर को मनसूख करने की ख्वाहिश की। चंद्रबाबू की अर्जी की समाअत कल होगी। मुल्क ही नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसों पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट को कोरोना पर किए जाने वाले इकदाम पर आईजीबीएस प्रसाद ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 7 मार्च से 11 मार्च तक 20,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिस पर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। हाई कोर्ट को आईबी ने बताया कि सर्वे करने के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। उस वक्त हेल्थ का अमला वैक्सीन टीके अमल में मसरूफ है। आईजी ने कोर्ट को बताया कि रियासत की सरहदों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर 300 मोबाइल बसों के जरिए बढ़ते हुए कोरोना के केसों को काबू में लाने के लिए अवामी हुजूमी मकामात के अलावा किसी की आखिरी रसूमात और शादियों में 100 अफराद से ज़्यादा ना हो, इसको यकीनी बनाया जा रहा है। आईजी ने बताया कि कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए हर रोज़ तामीरी मकामात के पास मोबाइल टेस्ट के इंतजाम किए जाएंगे। मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने हाई कोर्ट ने आईजी को हिदायत दी है। सिद्दीपेट जिले के जगदीपुर मंडल के तिम्मापुर में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने के वाक़े में एक मजदूर जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि इस 3 मंजिला इमारत के गिरने से सिर्फ 10 मिनट पहले 30 मजदूर इस इमारत में काम खत्म करके बाहर चले गए थे, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता और हो सकता कि कई मजदूर उसकी जद में आ जाते। वाक़े की इत्तला पाकर महकमे रेवेन्यू और पुलिस के अहदेदार वहां पहुंचे और उन्होंने मकाम हादसा का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत के बाजू सेलार की तामीर हो रही थी, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत गिर गई। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के शिवापुरम में आज सुबह के वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब मिनी लारी को एक 12 पहियों वाली लारी ने टक्कर दे दी। शहर के मंगलहाट के इलाके में नामालूम अफराद ने एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब नामालूम हमला आवरों ने नरेश नामी नौजवान पर तेज धारी हथियारों से हमला करते हुए उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह वाक़या जुमेरात की सुबह देर से सामने आया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर जांच की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में मसरूफ है। सबको नमस्कार। आज इंदिरा नगर कम्युनिटी हॉल के सामने ये हमारी बस्ती है। सब जने अच्छे रहते। आज ही नरेश बोलने वाले बच्चे के साथ किनसे ले लिया नहीं मालूम, 3 बच्चे थे कहते। वो बच्चा अच्छा रहता, हमारे बस्ती में रहता। उसका घर मल्लापल्ली आंखों को हिरकान के दवा के सामने गली में रहता। यहाँ मार के गिर गया तो हमारे बस्ती वाले फ़ोन करे तो आके देखे तो क्या हमारे बस्ती वाले ज़रा आगे पीछे हो रहे थे, जबकि ब्लू कोट्स वाले थे। सर्कल साहब को बुलाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ज़िले पुरुलिया में एक जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर मोदी ने बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी से मुराद मेरे कमीशन ट्रांसफर करें। कमीशन देने पर टीएमसी पार्टी कुछ भी करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत डीबीटी स्कीम पर काम कर रही है कि डीबीटी बराह रास्त मुंतकिली है। वो इस रकम को बराह रास्त खातों में जमा करवा रही है, लेकिन दीदी की ज़ेर क़ियादत तृणमूल पार्टी कमीशनों पर काम कर रही है। टीएमसी कमीशनों के लिए सियासत कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी 2 मई को बंगाल में हुकूमत बनाने जा रही है। तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया।
जब पुलवामा हमला हुआ तो इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।